ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے ہیڈ لائنز۔ ہندوستانی طبی شعبے پر دنیا کا بڑھ گیا ہے اعتماد، وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان۔ ملک میں آخری فرد تک طبی سہولیات پہنچانا حکومت کا اہم مقصد۔ سال 2025 تک ٹی بی سے پاک ہندوستان کا حاصل کریں ہدف، کووڈ کے تجربات سے ٹی بی پر قابو پانے نریندر مودی کی تجویز۔ ریاست میں گریجویٹ ایم ایل سی نشستوں کے لیے تھوڑی دیر میں پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی ہوگی مدت ختم، کل نامزدگیوں کا لیا جائے گا جائزہ، 14 مارچ کو ہوگی پولنگ۔ حیدرآباد میں بایو ایشیا چوٹی کانفرنس جاری، کچھ ہی دیر میں مائیکروسافٹ کے سی ای او ستیا ناڈیلا اور ریاستی وزیر کے ٹی آر کی ہوگی ورچوئل ملاقات۔ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے سری لنکا کے دورے کی ہوئی راہ ہموار، ہندوستان نے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے عمران خان کو دی اجازت۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اس سے پہلے کورونا کے تحت چوکس رہنا چاہیے، ہمیشہ ماسک پہنیں، لوگوں سے بات کرتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رکھیں، مسلسل اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں۔ ڈاکٹروں کا مشورہ ہے کہ احتیاطی اقدامات سے ہی کورونا کو روکا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے کووڈ-19 وبا کے ذریعے طبی شعبے میں مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی میڈیکل سیکٹر نے وبائی امراض پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج سال 2021 اور 22 کے عام بجٹ میں طبی شعبے کے لیے الاٹ کردہ بجٹ کے تعلق سے آج صبح ایک ویبینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے ہندوستانی طبی شعبے پر اعتماد بڑھایا ہے، جس سے کامیابی کے ساتھ کووڈ پر قابو پا لیا ہے۔ اپنے تناظر میں طب اور صحت کے شعبے کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ اس سلسلے میں بجٹ کے دوران الاٹمنٹ میں 137% اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرکز آنے والے دنوں میں بیماریوں کی روک تھام، سب کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی، طب کے شعبے میں انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانا اور طبی عملے کی تعداد اور صلاحیت میں اضافہ جیسے امور کو خصوصی ترجیح دے گا۔ مرکزی حکومت سال 2025 تک ٹی بی سے پاک ہندوستان کے حصول کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کی ہے کہ کووڈ کے تجربے سے ٹی بی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ یعنی سرکار کا زور صرف ہیلتھ کیئر میں نویش پر ہی نہیں ہے، بلکہ دیش کے دور دراز والے علاقوں تک ہیلتھ کیئر کو پہنچانے کا بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں کیا گیا نویش سواستھ ہی نہیں بلکہ روزگار کے اوسر بھی بڑھاتا ہے۔ ساتھیوں، کورونا کے دوران بھارت کے ہیلتھ سیکٹر نے جو مضبوطی دکھائی ہے، اپنے جس انوبھو اور اپنی شکتی کا پردرشن کیا ہے، اسے دنیا نے بہت باریکی سے نوٹ کیا ہے۔ آج پورے وشو میں بھارت کے ہیلتھ سیکٹر کی پرتشٹھا اور بھارت کے ہیلتھ سیکٹر پر بھروسہ ایک نئے سطر پر پہنچا ہے۔ ہمیں ہر سطر پر کام کرنا ہے، ہر سطر کو بڑھاوا دینا ہے۔ ہمیں یہ سنشچت کرنا ہے کہ دیش کے لوگ، چاہے وہ غریب سے غریب ہو، چاہے وہ سدور علاقوں میں رہتے ہو، انہیں بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ملے اور سمے پر ملے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مغربی بنگال کے کھڑک پور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 66ویں کانوکیشن سے خطاب کریں گے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر رمیش پوکھریال اور تعلیم کے وزیر مملکت سنجے دھوترے بھی اس کانوکیشن میں شرکت کریں گے، جو عالمی وبا کے پیش نظر ورچوئل طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ 9 گولڈ میڈلز اور 66 سلور میڈل جیتنے والے 75 طلباء کو ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے شخصی طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ البتہ 2800 سے زیادہ طلباء کو آن لائن طریقے سے ڈگریاں دی جائیں گی۔ اسٹوڈنٹس کے لیے اہم نہیں ہے جن کو ڈگری مل رہی ہے۔ آج کا دن نئے بھارت کے نرمان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آپ سبھی سے صرف آپ کے پیرنٹس
और आपके प्रोफेसर्स की ही उम्मीदें नहीं जुड़ी हैं, बल्कि 130 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं के भी आप प्रतिनिधि हैं। इसलिए इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। तेलंगाना रियासत में 2 ग्रेजुएट एमएलसी हलकों के इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज दोपहर 3 बजे तक आखिरी तारीख है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पीर को अहम पार्टियों के लीडरों ने पर्चा नामजदगी दाखिल की है। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों और कारकुनों ने रैली के जरिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंचे थे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर शशांक गोयल ने बताया कि वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट हलकों के लिए कुल जुमला 29 पर्चे नामजदगियां दाखिल की गई थी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वालों में कांग्रेस से रामुलु नाइक, बीजेपी से जी परिमेंदर रेड्डी, सीपीआई से जनार्दन रेड्डी और टीजीएस से प्रोफेसर कोदंडराम शामिल हैं। महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद एमएलसी हलके के लिए कुल 38 पर्चा नामजदगियां दाखिल की गई थी। कांग्रेस से डी चिन्नारेड्डी, टीआरएस से एस वानी देवी और बीजेपी से एन रामचंद्र राव शामिल हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में बावकार तौर पर मुनक़िद की जा रही है बायो एशियाई समिट दूसरे रोज़ भी जारी है। वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किए जा रहे इस समिट का रियासती वज़ीर सनअत के तारक रामाराव ने आगाज़ किया। इस मौके पर कोविड वैक्सीन की तैयारी के लिए सख्त मेहनत करने वाले भारत बायोटेक के सीएमडी डॉक्टर कृष्णा एला और जेएमडी सुचित्रा एला को जीनोम वैली ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में वैक्सीन की तैयारी काफ़ी फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि अनकरीब तिब्बी आलात की तैयारी का पार्क भी कायम किया जाएगा। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद में 65% वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। हैदराबाद में हर साल मुनक़िद की जाने वाली बायो एशियाई समिट के लिए जारिया साल मूव द निडल थीम दी गई है। मुल्क और बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जारिया साल इजलास में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नादेला और WHO के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर सुमैया स्वामी के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि मंगल को श्रीलंका के लिए रवाना होने वाले इमरान खान अब सीधे श्रीलंका पहुंचेंगे। वाज़ेह है कि अगर हिंदुस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता तो इमरान खान के तैयारे को खासा घूम कर लंबे रास्ते से श्रीलंका पहुंचना पड़ता था। वरंगल अर्बन जिले के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लीलावती देवी ने बताया कि लोग कोविड वैक्सीन के ताल्लुक से अफवाहों पर ध्यान न दें और वैक्सीन काफ़ी महफूज है। उन्होंने वरंगल में दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में 16 जनवरी से पहले मरहले के तहत डोज वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ है और 13 फरवरी से दूसरे मरहले के तहत टीका लगवाया जा रहा है। इसी तरह कई अफराद ने टीका लिया है। उन्होंने मजीद बताया कि पहले मरहले के तहत टीका लेने वालों को लाजमी तौर पर दूसरे मरहले का भी टीका लेना होगा। बसूरत दीगर पहले मरहले का वैक्सीन बर्बाद हो जाएगा। अंगनवाड़ी वाళ్లకు ఐసిడిఎస్ కింద అంగన్వాడీ టీచర్స్ కి ఆయాస్ కి అందరికి వేసాము. తర్వాత ప్రైవేట్ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్ కి వేసాము. తర్వాత ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ లో మనకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మనకు మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా మొదట మనకు ఫస్ట్ డోస్ వేసాము. మనకు రెండో డోస్ కూడా వ్యాక్సిన్ మొదలైంది। कबायली समाज का मारूफ मजहबी मरकज सम्मका सारालम्मा जात्रा का कल से आगाज होगा। इस तनाजुर में छोटे जात्रा से कबल इन जंगलाती देवताओं के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में यात्री यहां पहुंच रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर हुजूम देखा जा रहा है। हल्दी, कुमकुम, फूल और साड़ियों का नजराना पेश कर रहे हैं।
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने वाज़ेह किया कि बीजेपी रियासत में टीआरएस का मुतबादिल है। वो पार्टी के रियासती इंचार्ज तरुण चौक के साथ मिलकर सरपुर कागजनगर रवाना होते हुए पिदापल्ली और मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि रियासत में तरक्की मफलूज हो गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत की माली इमदाद से चलने वाली स्कीमों के नाम तब्दील कर रही है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोतेरा स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। कल का टेस्ट मैच हिंदुस्तान और इंग्लैंड की टीम के लिए काफी अहमियत का हामिल है। दोनों टीमें टेस्ट मैच में कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई जख्मों की वजह से इब्तिदाई 2 मैचों से दूर रहने वाले उमेश यादव और बुमराह को टीम में शामिल कर सकती है। इसका नजारा करने के लिए क्रिकेट शायकीन में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने पीर को मरीख से पहला ऑडियो जारी किया। इस ऑडियो को नासा के परसिवरेंस रोवर ने लिया था, जिसमें हवा की आवाज को रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा नासा ने सुर्ख सैयारे यानी मरीख पर रोवर के लैंडिंग की पहली वीडियो भी जारी की है। अमेरिकी खलाई एजेंसी ने इत्तला दी है कि मरीख की सतह पर रोवर की लैंडिंग के दौरान माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, ताहम रोवर मरीख पर उतरते ही माइक्रोफोन ने ऑडियो कैप्चर करने लगा। परसिवरेंस कैमरा और माइक्रोफोन निज़ाम के लीड इंजीनियर डेव ग्रियल ने कहा कि आप जो आवाज़ 10 सेकेंड ऑडियो में सुन रहे हैं वो दरअसल हवा का एक झोंका है, जिसे मरीख की सतह पर माइक्रोफोन ने रिकॉर्ड किया है और इसे ज़मीन पर भेजा है। नासा के जरिए जारी करदा हाई डेफिनेशन वीडियो में परसिवरेंस रोवर सुर्ख और सफ़ेद पैराशूट की मदद से सतह पर उतरते हुए देखा गया है। ये वीडियो 3 मिनट 25 सेकेंड की है। इस वीडियो में रोवर के धूल के दरमियान सतह पर उतरते हुए देखा गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हिंदुस्तानी तिब्बी शोबे पर दुनिया का बढ़ गया है एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। मुल्क में आखिरी फर्द तक तिब्बी सहूलियात पहुंचाना हुकूमत का अहम मकसद। साल 2025 तक टीबी से पाक हिंदुस्तान का हासिल करें हदफ। कोविड के तजर्बात से टीबी पर काबू पाने नरेंद्र मोदी की तजवीज़। रियासत में ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्तों के लिए थोड़ी देर में पर्चा नामजदगी दाखिल करने की होगी मुद्दत खत्म। कल नामजदगियों का लिया जाएगा जायजा। 14 मार्च को होगी पोलिंग। हैदराबाद में बायो एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस जारी। कुछ ही देर में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नादेला और रियासती वजीर KTR की होगी वर्चुअल मुलाकात। और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के श्रीलंका के दौरे की हुई राह हमवार। हिंदुस्तान ने अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान को दी इजाजत।